Hello students, welcome once again in unit number 14 biomolecules, our session number 3. In last sessions we are focusing on monosaccharides, right? We know that the classification of carbohydrates on the basis of the hydrolysis we can classify it into three parts: monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharides. So in monosaccharides, we know that it's the simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed to the smaller molecules, and it contains 3 to 7 carbon atoms, and mostly in nature near about 20 monosaccharides which are occur in nature. And this monosaccharide is also classified into two types: aldose and ketose. Those monosaccharide containing an aldehyde group is called as an aldose, and those monosaccharides who containing a keto group is called as a ketose. And these aldose and ketose are further classified into triose, tetrose, pentose, hexose, heptose, according to they contain the 3, 4, 5, 6 and 7 carbon atoms respectively. So this classification of monosaccharides it can be shown in our last sessions, that aldotriose, aldotetrose, aldopentose, aldohexose, likewise ketotriose, ketotetrose, ketopentose, ketohexose. Okay, so various examples that we have to given in our last sessions. And then we move to the occurrence and the preparations of glucose, or sometimes called as dextrose or grape sugar too. So we know that in the combined state, right? In the combined state, we know that the glycosides and disaccharides and polysaccharides, so they're having a glucose. So if the from sucrose or from cane sugar, we hydrolyze this sucrose with a boiling with dilute hydrochloric acid or H2SO4 in alcoholic solution, so we get an equimolar mixture of glucose and fructose. Same way from starch, but we know that commercially or industrially glucose is obtained by the hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at near about 120 degrees centigrade temperature and under pressure like 2 to 3 atmospheric pressure. So these are the summary or the highlights of our last sessions. Now we move to the most important point, and is the main point of the glucose, is the open chain structure of glucose. Now we have to prove that what is the structure of glucose. देखिए, केमिस्ट्री की जो दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, उसमें कई स्ट्रक्चर ऐसे थे, थोड़े टीडियस थे, कि उसको काफी देर के बाद उसका रिसर्च और फिर उसकी प्रोसेस होने के बाद उसको कंफर्म किया गया है. ऐसे तो कई है, लेकिन आपको जो दो स्ट्रक्चर आपके 11th और 12th में थे ना, उसमें से एक था बेंजीन का स्ट्रक्चर. वो 1825 में मिला था, तब से लेके 1932 के पास वो फाइनलाइज हुआ था. इस तरह बायोमोलेक्यूल्स में ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा हटके है. उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, उसका फिर सॉल्यूशंस किस तरह से किया हुआ है, वो आज और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं. ग्लूकोज इज एन aldohexose. वी नो दैट द ग्लूकोज इज हैविंग अ aldehyde group at the terminal positions and they having a 6 carbon, so it's classified under aldohexose. It is also called as a dextrose. We know that the meaning of dextro means the dextrose word is coming from the dextro, and we know that all the carbohydrates in the case of monosaccharide and oligosaccharides and mostly in the polysaccharides too, they use a ose as a suffix, right? So is a dextrose. So what is the meaning of dextrose? We know that this optically active compound, when we put the aqueous solution in the polarimeter, so the rotation, okay, so this rotations which can be turned out at the right hand side, so this is called as an dextrose. So it's a dextrorotatory. That's why this is called as an dextrose. Mind well, we are working on a naturally occurring carbohydrates, not a synthetic preparations, okay. So it is a monomer of many polysaccharides such as a starch, glycogen, cellulose. So if we hydrolyze starch or glycogen or cellulose, so our last unit or the last simple molecule is a glucose. Now the open chain structure, right? So open chain structure of glucose was firstly proposed by a Bayer, a name that you already know, that is the Bayer. It contains one aldehyde group, one primary alcohol group and 4 secondary alcohol group. So
this was proposed by Bayer. So this Bayer, the structure was assigned on the basis of the following evidence, right? सो किस तरह से उसने ये स्ट्रक्चर्स है वो फाइनलाइज किया था, तो हम उसका थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहते हैं। पहले हम क्या करेंगे, तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हमें मालूम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसकी क्या होती है, तो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, वी नो ऑल नो दैट दिस इज C6H12O6। कितना अच्छी तरह से हमें पता चल गया है, लेकिन इसके लिए भी साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया हुआ है। मैंने आपको बोला था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो जैसे वो न्यू मिल रहा है तो हमें पता नहीं है ना उसमें कौन से एलिमेंट्स है। सो फर्स्ट वी हैव टू द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ दिस सर्टेन एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि कार्बन का हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, हेलोजन का, फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, तो उसका टेस्टिंग प्रोसेस क्या है। तो इससे हमें यह पता चला कि मेरे जो कंपाउंड है उसमें कार्बन है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन है और तीसरा इसमें ऑक्सीजन है, यह हमें पता चल गया। इसका दूसरा मतलब यह भी हो रहा है कि अवर कंपाउंड ग्लूकोज डज नॉट हैव नाइट्रोजन, हेलोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद साइंटिस्ट ज्यादातर कहां पे चले जाते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे चले जाते हैं कि अभी है कार्बन है तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज का भी हमने एस्टिमेशन प्रोसेस देखा हुआ था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमें जब हम फरवरी मार्च महीने में हम बात कर रहे थे तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कितने परसेंटेज हो रहे हैं, तो वो परसेंटेज भी उसने ढूंढे कि उसके नियर अबाउट कार्बन है वो 40% है, हाइड्रोजन है वो नियर अबाउट 6.7% है और ऑक्सीजन है उसका उसने 53.3% उसको मिला। फिर उसको क्या करना चाहिए, हमें मालूम है उसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला ढूंढनी चाहिए। ये तो अपना चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 11 का आ गया और फिर जीओसी में भी हमने ये पढ़ा हुआ था, क्योंकि उसका जो एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं कि वी हैव टू डिवाइड दिस परसेंटेज विद देयर एटॉमिक वेट एंड वी नो दैट द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, सो 40 डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन 6.7 डिवाइडेड बाय 1, 53.3 डिवाइडेड बाय 16, सो वी गेट अ सर्टेन आंसर। जो इसमें से जो लोवेस्ट है फिर उसको हम डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ के उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मुझे मिला है, CH2O, ये मुझे मिला है। यानी कार्बन है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अभी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें मिला है तो उसका एम्पेरिकल वेट भी होगा ना। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल वेट। तो एम्पेरिकल वेट क्या है, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16, राइट, 14 प्लस 16 क्या मुझे मिलेगा, 30 मिलेगा। फिर मैं क्या ढूंढूंगा, तो कि फिर मैं उसका मोलेक्युलर वेट ढूंढूंगा। मोलेक्युलर वेट, तो मोलेक्युलर वेट के लिए तो हमारे पास कहीं प्रैक्टिकल प्रोसेस है। आपने जो सॉल्यूशंस पार्ट पढ़ा हुआ है उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, हम फ्रीजिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, ऑस्मोटिक प्रेशर से, राउल्ट्स लॉ से हम मोलेक्युलर वेट ढूंढ सकते हैं। तो हमें जो है ग्लूकोज उसका मोलेकुलर वेट मुझे क्या मिल रहा है, तो कि नियर अबाउट 180 उसका मुझे प्रैक्टिकली मुझे मिला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट करूंगा तो मुझे 6 आंसर आएगा। तो 6 को उसके साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा C6H12O6। आप सभी को पता है, लेकिन मैं थोड़ा इसके डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये जो है एक बार आपका जो चैप्टर नंबर 1 था 11th का और जीओसी के पोर्शंस में कुछ इस तरह से पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा उसका डिटेल और आपका थोड़ा ब्रशअप हो जाए, आपका जो पुराना जो हमारी मेमोरी है वो वापिस लौट आए, इसलिए मैंने यहाँ पे मोलेकुलर फॉर्मूला की थोड़ी बात आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, तो उसमें मोलेकुलर फॉर्मूला तो यहाँ पे हमें मिल गया है। अभी जो दूसरा पॉइंट है वो मुझे क्या है, तो कि दूसरा पॉइंट मेरा है वो है स्ट्रेट चेन। जो भी 6 कार्बन है तो वो किस तरह से उसमें जुड़े हुए हैं, राइट। हमें ये सोचना है कि तो उसके लिए कोई टेस्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली इसमें कोई टेस्ट तो है ही। तो वो जो टेस्ट है ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए अभी बेयर को क्या मिला था, उसने मालूम है कि एक CHO है, CHOH 4 टाइम्स है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल है, और एक प्राइमरी अल्कोहल। वी नो दैट द प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज लाइक दैट, लेकिन हमें तो ये अभी उसको प्रूव करना है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, तो कि उसको मैं हाइड्रो आयोडिक एसिड, आपको मालूम है दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। किसी को भी आप HI के साथ प्रोसेस करेंगे ना, रेड फॉस्फोरस के साथ,
तो वो उसको लास्टली अल्केन तक पहुंचा देगा। इसका इतना पावर है HI का। आप अल्कोहल में होगे तो भी अल्केन में डाल देंगे, आप कार्बोक्सिलिक एसिड में होगे तो भी आपको अल्केन तक वो ले जाएंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। और नियर अबाउट मुझे मालूम है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हम उसको जैसे उसको हीट देंगे तो वो मुझे उसने एक कंपाउंड यहाँ पे दिखाया हुआ है, और वो जो कंपाउंड है मेरा वो है CH3 CH2 4 टाइम्स CH3। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, तो कि नॉर्मल हेक्सेन मिला। आपको पता चला क्या हो रहा है। रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोआयोडिक एसिड ने CHO का रिडक्शन CH3 में कर दिया है। कार्बोनिल ग्रुप विच इज कन्वर्टेड इनटू CH3 ग्रुप में C डबल बॉन्ड होता है ना, उसको CH2 में डेवलप कर दिया है। और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको भी CH2 में डाल दिया है, उसको भी CH2 में, जो हमारा यहाँ पे O है ना, सभी O निकल गए हैं देखिए, और उसको नॉर्मल हेक्सेन में डाल दिया है। हमें मालूम है कि इन द केस ऑफ नॉर्मल हेक्सेन इट्स अ स्ट्रेट चेन, यहाँ के 6 कार्बन है वो एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, यानी लीनियर है। तो उसका मतलब ये लीनियर आया तो जो जिसमें से आया होगा उसमें भी 6 कार्बन लीनियर पोजीशन में ही होंगे। आपको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सो दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट ऑल द 6 कार्बन, राइट, मैं क्या बता रहा हूं, ऑल द 6 कार्बन atoms in glucose are arranged in a straight chain, ठीक है। आपको पता चल गया मैंने क्या प्रूव किया हुआ है। एक मैं आपको थोड़ा मेरी तरफ से भी एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन है ना, वो कभी भी एक बार उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ था, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। एक और भी टेस्ट है यहाँ पे, CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। वी नो दैट इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी देखिए मैंने यहाँ पे जो रिडक्शन करा है ना, वो कंप्लीट रिडक्शन हो गया है, उसको हम कंप्लीट रिडक्शंस बोलेंगे, क्योंकि HI का पावर ही है, जहां पे भी होगा वो कंप्लीट रिडक्शन करके वापस आएगा। तो कई स्टूडेंट्स को ऐसा हमें कैसे पता चला कि वो कंप्लीट रिडक्शन वो अल्केन तक पहुंचा देगा। अल्केन इज द लास्ट स्टॉप ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम अपनी तरफ से देख रहे हैं एक्टिविटी सीरीज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मेरे पास ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज का मैंने अभी में है ना कंट्रोल रिडक्शंस करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमालगम के साथ मैंने उसका कंट्रोल रिडक्शंस किया हुआ है। सो वंस अगेन ऑन रिडक्शंस विथ सोडियम एमालगम दिस ग्लूकोज यील्ड्स व्हाट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा एल्डिहाइड है ना वो अल्कोहल पे चला जाएगा, और अल्कोहल का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अल्कोहल है ना, तो वो जहां पे है वहां पे भी रहेंगे। ये जो कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल। इसको क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल दूसरा कुछ भी नहीं है, वो है हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है, हेक्साहाइड्रिक, 6 OH है तो हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये सॉर्बिटॉल हमें कंपाउंड मिला। ये सॉर्बिटॉल में 6 कार्बन कहां पे है, एक ही लाइन पे है, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें पता चल सकता है कि ये सॉर्बिटॉल किस तरह से मिल रहा है ये, लेकिन आपकी अभी बुक में ये नहीं डाला हुआ है, इसलिए मैं आपको अपनी तरह से ही समझा रहा हूं, ठीक है। फिर ओके फाइन। सो हमने ये जो 2 रिएक्शंस यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, ए रिएक्शंस भी दिखाया, बी रिएक्शंस भी दिखाया। दोनों रिएक्शन से हमें पता चल गया ऑल द 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। अभी हम तीसरा हम क्या करेंगे, तो क्या तीसरा हमारा जो प्रोसेस है वो है प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो कंपाउंड है वो कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि ये बेयर को पता कैसे चला कि ये एल्डिहाइड है, तो पहले उसको ये भी पता चलेगा कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं। तो हम तो पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा मेरा रिवीजन भी पोर्शन हो जाए कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज देखिए आप, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। देखिए CHO है, यहाँ पे क्या है CHOH 4 टाइम्स है, यहाँ पे CH2OH है। हमें मालूम है ये ग्लूकोज है, लेकिन ये तो बाद में मालूम पड़ा था।
तो ये ग्लूकोज का हमने फर्स्ट रिएक्शंस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिलेमाइड। आपको पता चल गया ये कौन सा रिएक्शंस है? एडिशंस फॉलोड बाय एलिमिनेशंस ऑफ वाटर का रिएक्शंस है। यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा, ठीक है, तो वाटर निकल जाएगा। सो फर्स्ट वी गेट अ प्रोडक्ट इज लाइक दैट CH डबल बॉन्ड NOH, this is nothing but it's a CHOH 4 times and CH2OH। ये जो कंपाउंड हमें यहाँ पे मिला है उसका नाम है ग्लूकोज ऑक्साइन। पता चल गया ना? वो जो हम हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ जो भी रिएक्शंस करेंगे तो जो कंपाउंड्स हमें मिलेगा आइदर विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन वी गेट ऑलवेज ऑक्साइन कंपाउंड, ठीक है। इससे पता क्या चला? इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। फिर उसका डबल मैंने आइडेंटिफिकेशन किया, मैंने हाइड्रोजन साइनाइड भी उसमें डाला। हमें मालूम है हाइड्रोजन साइनाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेगा अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो उसने क्या कर दिया? यहाँ पे देखिए हमें मालूम है O माइनस है, माइनस के पास प्लस चला जाएगा और ये डेल्टा प्लस के पास Cn माइनस चला जाएगा। फिर जो भी बाकी का जो स्ट्रक्चर है जो हम देख रहे हैं रिमेनिंग वो तो सेम ही है। तो ये जो हमें कंपाउंड मिला है उसका नाम क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन हमें मिला। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये दोनों प्रोसेस इस तरह से हमें दिखा रही है। व्हेन वंस अगेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलेमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइन एंड एड्स द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म अ साइनोहाइड्रीन। सो ये जो दोनों रिएक्शंस है वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्लूकोज कंटेन्स, ये हमें क्या बता रहे हैं कि ग्लूकोज कंटेन्स अ C डबल बॉन्डो ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। इससे हमें यह पता चल रहा है। ओके, अभी मैं आपको चलो कार्बोनिल में अभी तो हमेरा अभी ये आइडेंटिफिकेशन होगा ना कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है मेरे पास, एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसके लिए भी हम टेस्ट कर सकेंगे। हमें मालूम है कि एल्डिहाइड है ना वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्रोसेस कर सकता है लेकिन कीटोन नहीं कर सकता है। सो वी यूज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है CHOH है ये 4 टाइम्स है और फिर मैंने यहाँ पे CH2OH। हमें मालूम है ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो ग्लूकोज हमने दिखाया हुआ है, सो दिस ग्लूकोज व्हेन oxidize in presence of what? ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? वंस अगेन सो इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से जो एल्डिहाइड होगा तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वो उसने कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीटोन होता तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। यानी ये जो मुझे ग्लूकोनिक एसिड यहाँ पे मिला हुआ है वो यहाँ पे बता रहा है कि देयर इज अ CHO ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट? और CHO ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फिर मुझे मालूम है वो तो मोनोवेलेंट होते हैं। तो मोनोवेलेंट होने की वजह से वो क्या हो गए, कहाँ पे हो गए? सो एट द एंड ऑफ द कार्बन एटम, एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है। तो अभी हमें दो बात का पता चला है। पहली ये बात पता चली कि 6 कार्बन हमें एक लाइन में रखने हैं और उसके जो टर्मिनल पोजीशंस पे मुझे CHO डाल देना है। अभी हमारा नेक्स्ट मिशन क्या होगा कि उसमें सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, ठीक है, और उसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी किस तरह से है, तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा। तो अभी हम नंबर 4 पे चले जा रहे हैं। सो नाउ वी फोकस ऑन द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए कौन सी मुझे प्रोसेस करनी पड़ेगी, मुझे किस तरह से पता चल सकता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। सो मैं अभी क्या कर रहा हूं, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। मेरे पास CHO है, यहाँ पे CHOH 4 टाइम्स है और फिर मेरे पास यहाँ पे CH2OH। हमें मालूम है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मैंने उसका एसिटाइलेशन करवाया हुआ है, एसिटाइलेशन CH3CO ट्वाइस O के साथ। हमें मालूम है उसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एसिटिलेशन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे
OH है तो यहाँ पे जो O और H के बीच में से ये निकल जाएगा, H निकल जाएगा और COCH3 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो आल्डिहाइड पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे हो सकता है? देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है CHO, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये कितने थे? 4 थे। फिर यहाँ पे भी हो गया CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, और मुझे कितने एसिटिक एसिड वापिस मिल गए? तो 5 एसिटिक एसिड मुझे यहाँ पे वापिस मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि उसने O और H के बीच में प्रोसेस करके एसिटाइलेशन किया हुआ है, एंड वी गेट द प्रोडक्ट इज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। So once again, on acetylation with a acetic anhydride, glucose gives glucose pentacetate. So what it confirms is confirms that glucose contain a 5 hydroxyl group, and we know that अभी क्या होगा, कहीं बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं तो मुझे क्वेश्चंस करते हैं, सर जी 5 OH है तो एक ही कार्बन पे 2 OH नहीं हो सकते, राइट? तो कि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसको जेमिनल अल्कोहल बोलते हैं, और जेमिनल अल्कोहल अनस्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों OH में से पानी निकल के वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो मालूम है ग्लूकोज तो स्टेबल कंपाउंड है। इसका मतलब ये होगा कि 5 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, देखिए क्या पता चला मुझे कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो तो मुझे पता चल गया। ओके, दूसरा मुझे क्या पता चला कि दिस 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स must be present on different कार्बन एटम्स। ठीक है, आपको पता चल गया? मैं इस तरह से दिखा रहा हूं। ओके फाइन, अभी हम, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हाँ देखिए, अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट में दिया हुआ है वहां पे मैंने फ्री CHO दिया हुआ है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। फ्री CHO ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, तो वो साइक्लिक पायरेनो स्ट्रक्चर होगा, वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको समझाऊंगा। और ये जो OH है ना, वो OH C1 C2 C3 C4 और C6 पोजिशंस में होते हैं। लेकिन अभी तो मैंने आपको पहले से बोला था कि अभी तो ये मेरा पिक्चर चल रहा है, सस्पेंस है पिक्चर। सस्पेंस क्या है, किस तरह से है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। अभी 5th मेरा जो पोर्शन है वो हमें देखना है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहल। अभी जो हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं, वो हमें देखना होगा। तो क्या वो भी हो सकता है? किस तरह से हो सकता है आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास है CHO, CHOH, राइट, और CH2OH। हमें मालूम है ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का मैंने HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन किया हुआ है। हमें मालूम है HNO3 इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा, CHO तो माइल्ड से भी हो सकता है, लेकिन ये तो उसका भी कर देगा, उसको C में डाल देगा, और प्राइमरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर देगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसने जो कंपाउंड हमें यहाँ पे दिखाया है वो इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। हमारा कंपाउंड दोनों जगह पे CH हो गए, उसको हम सैकेरिक एसिड भी बोल सकते हैं। सैकेरिक एसिड, उसका दूसरा भी एक नाम है, यहाँ पे आपकी हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, उसको ग्लाइकेरिक एसिड भी बोलते हैं। ग्लाइकेरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो उसका कोई प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। फिर से मैं एक और आपको यहाँ पे एविडेंस देना चाहता हूँ। मेरे पास अभी वो मैंने आपको दिखाया था, अभी मैंने आगे वाले पोर्शंस में मेरे पास ग्लूकोनिक एसिड है। क्या है मेरे पास? ग्लूकोनिक एसिड है। तो ग्लूकोनिक एसिड में प्राइमरी अल्कोहल है, यस है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस HNO3 तो ऑक्सीडेशन फिनोमिना से वो फिर से सैकेरिक एसिड पे चला जाएगा। सो वंस अगेन ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड बोथ ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड गिव द सेम सैकेरिक एसिड और ग्लाइकेरिक एसिड विच इज indicates that glucose contain 1 primary alcohol group। इसके पास एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। सो यहां से हमें क्या पता चल गया है कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH is present
एट द, वो प्राइमरी अल्कोहल कहाँ पे होता है? टर्मिनल पे होता है. सो एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन. ठीक है. तो अब ये पूरा जो हमारा जो यहाँ पे हमने पढ़ाई की है, आप उसको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि CHO भी है, CHO सेकेंडरी अल्कोहल है, कोई एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े नहीं हुए हैं, और प्राइमरी अल्कोहल तो लास्ट में होता है, और 6 कार्बन एक लाइन में ही है, एक लीनियर फॉर्मेशंस बना रहे हैं. सो इसकी वजह से जो हमें यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, सो फ्रॉम द अबाउ डिस्कशंस it is evident that the glucose has one aldehyde group, one primary alcohol group, and in all glucose have 5 hydroxyl group, one of which CH2OH group is the other 4 OH group must be secondary in nature. दूसरी तरफ से हम इसका शॉर्ट में भी ऐसा भी बोल सकते हैं, एक CHO है, एक CH2OH है, और बाकी के 4 CHOH ग्रुप है. तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स को इस तरह से दिखा सकता हूँ. यहाँ पे CHOH भी होगा, फिर दूसरा CHOH है, फिर तीसरा CHOH है, फिर चौथा CHOH है, और ये प्राइमरी अल्कोहल है. ठीक, ये कायरल कार्बन है. देखिए आप, ये भी कार्बन कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कार्बन है. सो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज 4 डिसिमिलर कायरल कार्बन, जिन्हें मैंने मार्क्ड बाय एस्टेरिस्क से किया हुआ है. देयरफॉर हमें मालूम है कि 2n जो वॉन्ट ऑफ का स्टेटमेंट था, तो 2/4 यानी उसके 16 आइसोमेरिक फॉर्म्स होने चाहिए. सो ऑल द 16 आइसोमेरिक फॉर्म्स आर नॉन एंड बिलोंग टू 8 ग्रुप्स ऑफ एनेंशियोमर्स. उसके 8 एनेंशियोमर्स मिलेंगे. मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में उसके 8 नेम भी दिखाए थे, बोला था. एक ग्लूकोज है, एक मेनोज है, एक गैलेक्टोज है, एक गुलोज है, एक टेलोज है, एक आइडोज है, एक एलोज है, और एक एल्ट्रोज है. वो सभी नाम बोले थे. ठीक है. तो उसका 8 2 16 उसकी एनेंशियोमर्स की जो पैर है वो मुझे मिलेगी. अभी कहीं अभी तो ये होना चाहिए ना पता कि भाई ये एग्जैक्ट उसका जो स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा, क्योंकि 5 OH किस तरह से वो दिखाई देंगे. सो द एग्जैक्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, द एग्जैक्ट स्पेटियल अरेंजमेंट, यानी स्पेस में जो उसकी अरेंजमेंट होती है, राइट, ऑफ द डिफरेंट OH group was firstly determined by एक बढ़िया साइंटिस्ट था, अपने नाम तो सुना ही होगा, एमिल फिशर. जर्मन साइंटिस्ट है ये एमिल फिशर. उसने 1891 में क्या किया था? उसने रिमार्केबल पीस ऑफ रिसर्च वर्क उसने किया हुआ था. He got a Nobel Prize, okay? He got a Nobel Prize for this work in 1902. उसको यहाँ पे उसके लिए 1902 में नोबेल प्राइज मिला था. उसने बहुत अच्छी तरह से, जैसे उसने ग्लूकोज का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे समझाया हुआ है. देखिए CHO है, ये फिशर, ये CH2OH है. जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, देखिए वो कायरल कार्बन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो तो उसने इस तरह से उसका अरेंजमेंट दिखाया हुआ है. हाँ, तो ये अरेंजमेंट जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे भी H और OH है, यहाँ पे भी H और OH है. देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट 1 कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और 6 कार्बन एक लाइन में ही है. ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स आपको दिखाया हुआ है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. ठीक है. सेम उसने ये भी स्ट्रक्चर्स दिखाया था. कौन सा? ग्लूकोनिक एसिड का. सेम स्ट्रक्चर ग्लूकोनिक एसिड का उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो देखिए आप, ग्लूकोनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से यहाँ पे मुझे मिल रहा है. यहाँ पे भी H है, यहाँ पे OH है, लेकिन यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, H है, OH है, H है, OH है. ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो ग्लूकोनिक एसिड के हैं. सेम वे उसने सैकेरिक एसिड का स्ट्रक्चर्स भी कंफर्म किया हुआ था. यहाँ पे COOH सैकेरिक एसिड है. फिर 1 2 3 4 यहाँ H है और OH है. यहाँ पे OH और H है, यहाँ पे भी H और OH है, और यहाँ पे भी H और OH है. हमें मालूम है ये 1 2 3 4 5 6. सेम वे 1 2 3 4 5 6 ये जो हमें दिखाई रहा है वो सैकेरिक एसिड का स्ट्रक्चर्स भी उसने उसका स्पेस में किस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो उसने यहाँ पे दिखाया हुआ था.
तो ये मेरा ग्लूकोज का पहला स्ट्रक्चर, ग्लूकोनिक एसिड का दूसरा स्ट्रक्चर और सैकेरिक एसिड का तीसरा स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है, देखिए आप, द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड इन वन. So gluconic acid and saccharic acid, configuration of this, which is also given. So it may be noted that in glucose the OH group, यहाँ पे OH देखिए chiral carbon के orientation में लेफ्ट की साइड है, while remaining all three OH on the right hand side at the C2, C4 and C5 they are oriented towards the right. तो स्पेस में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, वो एमिल फिशर ने वहां पे बताया था. ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे रुकूंगा. अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कॉन्फ़िगरेशंस के बाद में मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, उसमें क्या घुमाव आ रहा है, क्या कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, क्या सस्पेंस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.